अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ फ़ीमा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ां व शिकस्तां रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे शहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्दे इस्यानम अग़िथनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Respected brothers, sisters, those who are listening and watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have recited a verse from Al-Quran Al-Kareem, Inshallah al-Azim. In the light of this verse, I will have some words, Inshallah al-Azim, regarding my topic today. Before that, let's present the flowers of Salatu Salam in the court of best of creations, our Master, the Master of universe, the Master of all the messengers, the beloved of Allah, the leader of humanity, our Prophet, the final messenger, beloved Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And do recite after me, say, As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Sallallahu ta'ala alayka wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give tawfiq to me, you and all of us to always speak the truth, listen the truth and follow the truth. Imam Ahle Sunnat Ala Hazrat Azimul Barakat, he says, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। Praising Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, it is not
possible for anyone in the entire nation, in the entire universe, not only the nation, in the entire universe. Even all the jinns, angels, human beings, they keep praising Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam continuously, even though they are not able to praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as he is. पूरी जिंदगी अगर हुजूर की तौसीफ, सना और मद पूरी कायनात मिलके भी करती रहे, तब भी हम ये बयान नहीं कर सकते कि मेरे नबी का हकीकी मर्तबा कितना है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हकीकी मकाम व मर्तबा जानता है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर। The one who revealed the Quran, the Creator, the Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, he himself praising Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And then तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। Then how it is possible for you, O Radha, O Ahmad Radha, how it is possible for you that you can praise perfectly as Rasulullah sallam is? So ये हमारे आपके बस में नहीं है। सिर्फ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी शान जानता है, हकीकी मर्तबा जानता है, उनके हकीकी मकाम को जानता है। सुभान। The ayah which I have recited today, in this ayah Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed, without any doubt, certainly, the life of beloved Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is a beautiful ideal for you. बेहतरीन नमूना अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है तुम्हारे लिए। In the every field of life, in the different aspects, anywhere, you will find guidance in the seerah and in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As a teacher, as a leader, as a businessman, as a politician, as a husband, as a son, ग़र्ज़ के हर तरीके से you will find guidance, and the beautiful guidance and the ideal actions for all the fields in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because Allah subhanahu wa ta'ala when sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, He didn't send Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for a specific region or specific time, a specific area. No, He is a messenger of all the creations. हमारे नबी सारे मखलूकात के रसूल हैं, सबकी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए, सबकी तरफ। यही वजह है, if you look at into the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then you will find when a man, human being facing a problem, he used to come to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मेरे आका मुझे ये परेशानी है, आप इसका इलाज कर दें. And then he used to get solution. Many peoples, and from different colors, from different origins, from different backgrounds, they used to come to share the problem with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they all admit and accept and acknowledge that the best solution which we have get ever, it is from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now comes to the other creations. मेरे नबी की बारगाह में अपनी परेशानियों का हल तलाश करने लेने के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं आते, बल्कि जानवर भी जब परेशान होते हैं तो नबी की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। You don't hear about this deer? उस हिरनी के बारे में जाना है आपने, जो अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती थी और कैदी ने कैद कर लिया। हिरनी ने कहा कि बस मैं दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। या रसूलल्लाह, मेरा ये जो शिकवा है, एक माँ का दर्द, आप उस
शिकारी से बयान कर दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हिरनी मुझसे वादा कर रही कि ये हिरनी वापस आएगी, इसे छोड़ दो। हिरनी गई, दूध पिला के फिर वापस आ गई। अपना शिकवा उसने हुजूर से बयान किया। द कैमल व्हिच इज मेंशन्ड इन द हदीस, एक ऊंट था। When the camel was strong, the owner used to take a lot of work from this camel. बहुत खिदमत लेता था, लेकिन जब बूढ़ा हो गया वो ऊंट, तो he was not looking at this camel, was not taking care of it. उसका ख्याल करना बंद कर दिया उसने। वो ऊंट आया और आकर के हुजूर की बारगाह में आंसू बहाने लगा। The camel crying in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. वो जब आंसू बहाने लगा तो हुजूर ने उसके मालिक को बुलाया और कहा कि ये ऊंट अपनी जबान में तेरी शिकायत कर रहा है कि तू इसका ख्याल नहीं करता। ये भी अल्लाह की मखलूक है, तुम इसका भी अच्छा ख्याल रखो। पता चला यहाँ से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों की जबान नहीं, जानवरों की जबान भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबकी तरफ रसूल बना करके भेजे गए, परिंद की तरफ, चरिंद की तरफ, इंसानों की तरफ, जिन्नात की तरफ और फरिश्तों की तरफ, पूरी कायनात की तरफ वो रसूल बना करके भेजे गए। सो जो सबकी तरफ रसूल बना करके भेजे गए हैं, उनकी हयात में सबके लिए रहनुमाई होना चाहिए। इसीलिए कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी की हयात में बेहतरीन नमूने अमल है। If you want to be a perfect person, all you have to do just start following footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Just start following the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You will be the best husband. You will be the best father. You will be the best son. You will be the best businessman. You will be the best leader ever. You will be the best politician. You will be the best teacher. You will be the best guide. You will be the best mentor if you just follow the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. क्योंकि नबी की हयात में हर एक के लिए रहनुमाई है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हर एक के लिए रहनुमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत ये बहुत बड़ा खजाना है, is a treasure. Unfortunately, this ummah, especially our generation, they don't know about the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They don't know how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to face the difficulties and how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to defeat these difficulties and how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam defeated all the problems at his time, all the challenges how he faced. This generation doesn't know this. आज हमारी नस्ल, हमारे नौजवान, हमारी कौम और हमारे अक्सर मुसलमान भाई उसे नहीं जानते, उससे वाकिफ नहीं। यही वजह है कि whenever they face any difficulty, they will depress, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी सीरत को पढ़ा नहीं है। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े तो नबी की सीरत में हमें पता चलेगा, you know that in the life history of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam there is a year which is known as the year of sorrow, Amul Huzn, गमों का साल। In this year what happened? His very beloved uncle Abu Talib, who took care of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very well, he defended Rasulullah sallallahu alaihi wasallam all his life. Abu Talib, he defended Rasulullah sallallahu alaihi wasallam all his life, even though he didn't accept Islam, but he defended Rasulullah sallallahu alaihi wasallam all his life. जितने भी मुशरिकीन थे, जब वो रसूल उनको तकलीफ देने की कोशिश करते तो अबू तालिब थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत फरमाते थे। And in this year, in Amul Huzn, he passed away. Amul Huzn में अबू तालिब का इंतकाल हुआ, and the beloved wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, our mother Sayyiduna Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha. Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha, Allahu Akbar. Islam has never seen a lady like Sayyiduna Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha. Hazrat Bibi Khadija जैसी खातून
शायद ही तारीख में कभी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब पहली वही आई तो हुजूर ने सहारा जो लिया वो सहारा हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने सहारा दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस वक्त उनका इंतकाल हुआ आमुल हुज़ून में। कैन यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट दिस टाइम वाज? वो हालात कितने मुश्किल थे, और ऐसे मुश्किल हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to Taif, and what he faced in Taif, the people in Taif, they started planting stone on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए कि पूरा बदन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून से लहूलुहान हो गया। The blood was flowing all over his body. जूतों में आके खून इतना जमा हो गया नालैन शरीफ में कि नालैन शरीफ निकलते नहीं थे। इतना सब कुछ हुआ, सारी तकलीफ, और लोगों ने इतना सताया। At that time the angel came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked, "O beloved Rasul of Allah, if you just order me, then I will crush this valley of Taif." ये ताइफ की जो वादी दो पहाड़ों के दरमियान में है, I will crush it, मैं इसको धंसा दूंगा, फंसा दूंगा, पीस के रख दूंगा। अब आप मुझे इजाजत दे दें। You know what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied at that time? You know what he replied? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि Allah has sent down me as a mercy for entire universe. अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। These people are planting stones on me, but my eyes are watching. The day will come, the coming generation of these people, they will be reciting salatu salam on me. ये मुझ पे पत्थर बरसा रहे हैं, लेकिन इनकी आने वाली नस्ल मुझ पे सलातो सलाम के फूल निछावर करेगी, मुझ पे दुरूद और सलाम भेजेगी। ये गैब की खबर थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। यू नो हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई, who is the one of the greatest imam of अहल सुन्नत व जमा, इस्लाम के जो चार इमाम हैं, मज़हब हनफी, मज़हब शाफ़ई, the four schools of fiqh, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान बसते हैं वो इन्हीं चार मज़ाहिब में किसी एक की इत्तिबा करते हैं। इधर या शाफ़ई, या मालिकी, या हनफी, या हम्बली, या तो हनफी होंगे, या तो शाफ़ई होंगे, या तो मालिकी, या तो हम्बली। इनसे हट करके कोई नहीं है। जो इनसे हट करके है, समझ ले कि he doesn't reach to रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन चला वो इन चार अइम्मा ने शरीयत की रोशनी में बयान फरमाया। जो इनसे हटके कहेगा कि वी कैन रीच टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं पहुंच सकते। तो हजरत मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़ई, you know, he comes from the same valley. ताइफ की उन्हीं वादियों से आते हैं जहां कभी उनके विलादत से सैकड़ों साल पहले या 100-150 साल पहले लोगों ने हुजूर पे पत्थर बरसाए थे। हुजूर ने फरमाया था कि छोड़ दो, इस वादी को तबाह मत करना, क्योंकि निगाह नबूवत देख रही थी कि वक्त आएगा कि वहां से निकलने वाले, वहां से आने वालों की औलाद ऐसी होगी कि वो मेरे दीन को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। And now Imam Shafi'i have millions of followers across the world. ये इमाम शाफी उसी ताइफ की वादी से आते हैं, उसी ताइफ की वादी से आते हैं। So we are going through a difficult time nowadays, right? The difficult time is our attachment with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Many people they doesn't understand. They should know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for us is like more than our parents, more than anything. So when it comes to the honor of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, we will be not silent. If you try to disrespect, it is not possible for us to tolerate this. It is not possible for us. The things which are going on nowadays in the France, in the name of freedom of expression, in the name of freedom of speech,
You may have the right of freedom of speech, but it must have a limit. You can't cross this limit. आपकी आजादी वहां तक है जहां किसी का दिल ना टूटे. If you are breaking millions of hearts, then it is not a freedom of speech. It is hate speech actually. ये आजादी इजहार या आजादी ख्याल की आजादी इजहार ख्याल की आजादी नहीं है ये कि आप 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों का दिल तोड़े. The thing which you are doing is already broken the hearts of more than 1.5 billion Muslims across the world, and you still say is a freedom of speech. It is not freedom of speech. It is a hate speech. जिसके जरिए तुम दूसरों के sentiments को, you are hurting the religious sentiments of more than 1.5 billion people. So it is not freedom of speech. Back, I want to mention one thing here. Huzur Akram sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ideal हैं. Every Muslim believes this. दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता वो मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल ना माने. क्योंकि इस्लाम असल में है क्या? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये. हुजूर अकरम से फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये. कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये. ईमान ये कहता है मेरी जान है ये. That's what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says in a hadith. ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन. तुम्हें से कोई भी उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तो सब कुछ नामुकम्मल है. The love of beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is the base, it is the main. Without love of Rasulullah there is no iman. Without respect for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam there will be no iman. ईमान हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की ताजीम का नाम है. अगर वो नहीं होगी दिल में तो ईमान ही नहीं है. तो सारी दुनिया तो मानती है, दुनिया भर के मुसलमान तो मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए आइडियल है, पूरे यूनिवर्स के लिए आइडियल है. देयर इज नो डाउट इन इट. लेट मी आस्क वन क्वेश्चन. द नॉन मुस्लिम्स, आर दे बिलीव इन द सेम वे? Those who are not Muslims, जो मुसलमान नहीं है, क्या वो भी ऐसा ही मानते हैं? This is a big question. To find out the answer of this question, you must read. You must educate yourself. You must try to know what the non-Muslim world says about beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you read to the just authors, जिन्होंने इंसाफ और अदल के साथ कलम चलाया, then you will find all of them they says yes, the best ideal for this universe is Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. You know the George Bernard Shaw is one of the greatest author from Ireland, I think. Yeah, he says if you want to solve all the problems of our time, we just need one person like beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अगर दुनिया की सारी परेशानियां दूर करनी है तो बस मोहम्मद जैसा कोई एक होना चाहिए, वो सारी परेशानियां दूर कर देंगे. वो मोमिन नहीं था, इसलिए नबी की खातमियत का उसे यकीन नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई उन जैसा आ नहीं सकता. जब उनका साया नहीं हो सकता तो उनके जैसा भला कोई कैसे आ सकता है. मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल, इजाजत हो तो पेश कर दूं शाह, मेरे पहलू में है टूटा हुआ दिल. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये ऐसी जात है कि अल्लाह ने उनको बनाने के बाद वो जो नबूवत का सिलसिला था उसे बंद कर दिया कि ये महबूब आप सारे नबियों के खातिम हैं, यानी आपसे बेहतर, आप जैसा या आपसे अच्छा ना मैं बनाऊंगा और ना क़ियामत तक कोई आ सकता है. पूरी कायनात को आप ही के नक्शे कदम पे चलना है.
पूरी दुनिया को आप ही को फॉलो करना है. The entire world must follow your footsteps, O beloved Muhammad, because there will be no creation better than you. In terms of looking, in terms of character, in terms of any aspect of your life. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात कर लें, हुजूर दिखते कैसे थे, हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर कैसे बात करते थे, हुजूर का किरदार कैसा था, हुजूर का अंदाज कैसा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारने की का जो तरीका था, लाइफस्टाइल कैसा था, ये सारी चीजें सब बेमिसाल है, सब बेमिसाल है. अरे आप मुझे बताइए कि अफदलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक, ये टाइटल हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिला. यानी अंबिया के बाद पूरे इंसानों में अगर सबसे हाईएस्ट रैंक किसी की है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की है. क्यों है? द क्वेश्चन इज दिस, क्यों है? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नबी की सुन्नतों और तरीके को इस उम्मत में अगर किसी ने फॉलो किया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला. उन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर की पैरवी की, तो पूरे इंसानों में सारे अंबिया के बाद सबसे बड़े मर्तबे पे फाइज हो गए. तो इससे पता चला कि जो नबी के तरीके को अपना ले वो बेमिसाल हो जाता है. तो नबी का क्या हाल है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना. सो मैं आज एक बात आपको बता रहा हूं, इसी बात में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म भी कर दूंगा. There is an American author, Michael Hart. Michael Hart एक अमेरिकन राइटर है, ऑथर है. He have written a book. उसने एक बुक लिखी, एक किताब लिखी. You know, I just mentioned one question. Does the non-Muslim world think same about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he is the best person ever? कि वही कायनात के सबसे बेहतर इंसान है, क्या वो भी यही सोचते हैं? तो मैं आपको उसी का जवाब देने जा रहा हूं. इशारे में मैंने कुछ तो जवाब दिया, अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मेरे सवाल का जवाब भी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा. He have written a book, Michael Hart. In this book, he mentioned this book is about 100 great personalities in the human history. इंसानियत की पूरी तारीख में 100 अजीम शख्सियात, 100 great personalities. And Michael Hart himself, he is a Christian, he is not Muslim, he is non-Muslim, he is a Christian. He believes in Jesus, जो ईसा अलैहि सलाम के अंदर यकीन रखते हैं. Michael Hart, when he compiled this book, जिसने ये किताब लिखी, इन द इंडेक्स, इन द लिस्ट, जब उसने फहरिस्त तैयार की उन 100 लोगों की जो कायनात में सबसे बेहतर है, you know what he did? He listed name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on number 1. And after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he named Hazrat Isa ibn Maryam alayhi salam. Even he is a Christian. हुजूर को पहले नंबर पे रखा, उनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रखा. The French people, when once he was in France, they criticized him. They criticized him. How can you do this? You are Christian. How can you put Jesus after Muhammad? You must have put Jesus above beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They criticized him. And you know what Michael Hart replied? Michael Hart said, I tried to convince myself that I should put Jesus above beloved Muhammad. But all of these convinces, पूरी कोशिश के बावजूद मैं ईसा इब्ने मरियम को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो अल्लाह के रसूल है उनसे ऊपर नहीं रख सका. They asked why? क्या हो गया ऐसा? क्यों नहीं कर सके तुम? And the Michael Hart says, वैसे तो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जिसने मुझे इंस्पायर किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, but there were 2 movements. 2 ऐसे लम्हात थे उनकी हयात में, उनकी सीरत में,
जिसने मुझे ये कहने पे मजबूर कर दिया कि पूरी कायनात का अगर कोई हकीकी आइडियल हो सकता है, यूनिवर्स के लिए कोई हकीकी रहनुमा हो सकता है, तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। इन दिस अबाउट दिस टू मोमेंट्स माइकल हार्ट सेज, कहता है कि पहला मोमेंट तो ये है कि मैंने देखा किस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। The time when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born, at that time there was no life for ladies, for women. औरतों की कोई जिंदगी नहीं होती थी. Once a baby girl born used to be buried alive. बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था. और अगर कोई बच्ची बड़ी हो जाए, उसकी शादी हो जाए और उसका शौहर मर जाए, तो जो बेवा होती थी, विधवा, द विडो, उसके साथ मामला यह होता था कि उसका अपना बेटा उससे शादी कर लेता था. She was used to treat like a slave. जानवरों की तरह उनके साथ सुलूक होता था. And then Michael Hart says, look at the life of beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was 25 years old and he came from one of the best family. He came from Quraysh. He was one of the beautiful guy in Arabian Peninsula. He was the best, the one who had the greatest character ever in this region. बड़ी बड़ी अमीर ज़ादियां, बड़े बड़े अमीरों की बच्चियां, वो चाहती थी कि वो हुजूर के साथ अपना रिश्ता करें, कोई भी खुशी से करने के लिए तैयार था. But Michael Hart says at that time 25-year old beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he first married, he got married with a two-time widow, Sayyidah Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala. We talk about women empowerment nowadays. औरतों को हुकूक दें, औरतों के हुकूक के हवाले से हम बात करते हैं. माइकल हार्ट कहता है कि उस वक्त जब औरत को इंसान भी नहीं समझा जा रहा था, तो मोहम्मद वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक बेवा से शादी करके क़यामत तक जितने भी मुसलमान आने वाले हैं, उन सब मुसलमानों के लिए हजरत खदीजतुल कुबरा को उनकी मां का दर्जा अता कर दिया. इससे ज्यादा औरत को भला कौन दे सकता है? माइकल हार्ट सेज कि मैंने जब ये देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, तो मैंने कहा कि इनसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता, इनसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता. द सेकेंड मूवमेंट, दूसरे मूवमेंट के हवाले से कहता है माइकल हार्ट, ही इज ए क्रिश्चियन, जो कह रहा है, कहता है कि एक मरतबा ऐसा हुआ, there was a person in Madinatul Munawwara, his son was missed. He was very desperate to find his son. You know how it happens. If you are not finding your kid, you will be desperate, you will be finding him, you will be searching everywhere, right? मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है. तो वो साहब भी ढूंढ रहे थे ऐसे अपने बच्चे को, जो बच्चा उनका गुम हो गया था, उसे ढूंढ रहे थे. Then he reached to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हुजूर की बारगाह में आए, आकर के कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है, मुझे मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है. तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिक्र मत करें, फलां फलां जगह जाइए, वहां आपका बच्चा खेल रहा होगा फलां फलां बच्चों के साथ. When this person, the father, is about to leave to get his son, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stopped him. हुजूर ने उसको रोका और रोक करके फरमाया कि सुनो, when you go there, तुम्हारे दिल में बड़ा शौक है कि तुम अपने बच्चे को मिलना चाहते हो, काफी देर से वो बच्चा तुमसे जुदा है, गुम है. अब तुम जैसे ही बच्चे को पाओगे तो बाप की मोहब्बत है, is a human nature. When you will find your kid after a long time, then you're gonna hug him, right? You're gonna kiss him. उसे गले से लगाओगे, उसे चूमोगे, उसका माथा चूमोगे. You will show the father's love. Naturally ये होता है, बाप की जो शफकत है, मोहब्बत है, वो तुम दिखाओगे.
हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम वहां जाओ तो वहां जो बच्चे खेल रहे हैं उन बच्चों के सामने तुम अपने बच्चे को सीने से मत लगाना. In front of these kids, don't hug your child. The person asked to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, why? He is my boy, he is my kid. Why I shouldn't hug him in front of these kids? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, because जहां तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, तुम्हारे बच्चे के साथ खेलने वालों में कई यतीम बच्चे भी हैं. There are many orphan kids there. When you will hug your child, they maybe remember their father and their heart will be broken. जब तुम अपनी मोहब्बत और शफकत का इजहार करोगे तो वो जो यतीम बच्चे हैं उन्हें हो सकता है अपने वालिद की याद आ जाए और उनके दिल कहीं टूट ना जाए. I am Muhammad as a mercy of all the universe. I don't want to break any heart. मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का दिल भी टूटे. Who is saying this? The one who born as an orphan. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम बनकर के इस दुनिया में तशरीफ लाए, यतीम होकर के दुनिया में तशरीफ लाए और दुर्रे यतीमी की ये शान, अल्लाहु अकबर, यतीमों का इतना ख्याल कर रहे. माइकल हार्ट कहता है कि इतनी बड़ी पोजीशन में होने के बावजूद, इतने बड़े मर्तबे में होने के बावजूद, जो एक नन्हे से दिल का इतना ख्याल करता हो, उससे बेहतर इंसान पूरी कायनात में हो ही नहीं सकता. And then the Michael says, these two moments made me to list Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the top of the list. That's why I listed him, I kept him above Jesus, above Isa ibn Maryam. अब आप मुझे बताइए, जिनके किरदार की गवाही उनके मुखालिफीन भी दें, अगर हम उनका किरदार अपनी लाइफ में नहीं अपनाएंगे तो हाउ कैन वी बी सक्सेसफुल? हम अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब होंगे? अगर हमें अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो किसी को भी आइडियल मत बनाइए, किसी को भी आइडियल मत बनाइए, क्योंकि हुजूर के तरीके से बेहतर किसी का तरीका नहीं. किसी के भी एक्शंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात औसाफ के से बेहतर हो ही नहीं सकते. उनके आदात और औसाफ इतने अच्छे हैं कि शायर कहता है, जब से देखा है लिबास से बशरी में उन्हें, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. फरिश्ते भी उनको देख करके ये तमन्ना करते हैं. वो फरिश्ते जो मासूम हैं वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी शक्ल में देख करके ये तमन्ना करते हैं कि काश हम भी ऐसे हो जाए. इतना बेहतरीन किरदार, इतना बेहतरीन कैरेक्टर, हमें ये अपनाने की जरूरत है. ये अपनाने की जरूरत है. And we need to teach this character to our kids. अल्हम्दुलिल्लाह सीरत का एक सिलसिला हमने शुरू किया है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इसका पता चले, इसे अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ मसाजिद में और मुख्तलिफ जगहों पे उसे बयान भी किया जाता है और उसे लोग सुनते हैं. यहाँ पे भी इंशाअल्लाह अज़ीम ये सिलसिला चलेगा. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, I kindly request to all the mothers, make sure that your children will listen to it. If your children will, because it is in Urdu, if your kids, if they can't understand, you should listen and translate it to your children. आप सुने उसे, जाने पहचाने, फिर उसे अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को बताएं, सिखाएं, ताकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जाने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पहचाने, ताकि उन्हें रहनुमाई मिल सके. आज की जनरेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना, यही करना है कि उन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो जिंदगी उन्हें सिखा दो, क्योंकि वो सीख लेंगे, they will be protected from drugs, they will be protected from alcohol. शराब से, ड्रग्स से, जिना से, अय्याशी से, जुए से, बुरे अमाल से, सारी चीजों से नजात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है. ये अगर जान लेंगे हमारे नौजवान, क्योंकि हुजूर की सीरत ऐसी है ना, हुजूर की सीरत ऐसी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जहां सीरत बयान होना शुरू होती है ना, वहां खुशबू पैदा हो जाती है. जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होती है
वहां का माहौल मुअत्तर हो जाता है। उलमा लिखते हैं जिस महफिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती है वहां का माहौल ऑटोमेटिकली खुशबूदार हो जाता है, मुअत्तर हो जाता है। अब मुझे बताओ जहां सीरत बयान की जा रही है वहां का माहौल मुअत्तर हो जाए तो अगर उस सीरत को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें तो क्या हमारी जिंदगी खुशगवार नहीं हो जाएगी, हमारी जिंदगी बेहतरीन नहीं हो जाएगी। बस हमें ये कोशिश करना है कि जितना भी हो सके हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है। हुजूर की हयात ही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। जब हम जानेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप है जानना, उसे जानिए, सुन के जानिए, पढ़ के जानिए, पूछ के जानिए और जानिए। जब आप एक मरतबा जानना शुरू करेंगे तो उसमें इतना अट्रैक्शन होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कि फिर आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप। दिल से आप उसको थोड़ा 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 जानने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, मालूम करने की कोशिश कीजिए उलमा से, जो जानते हैं उन लोगों से। इंशाअल्लाह अज़ीम ऐसा ताल्लुक हो जाएगा कि आप सीखते ही जाएंगे और हर गुजरते लम्हे में यू विल बी गेट क्लोजर टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से करीब होते जाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, आपको तौफीक अता फरमाए और हमारी माओं को, बहनों को, भाइयों को, पूरी कौम मुस्लिम के नौजवानों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, सुने, सीखें और उस पर अमल करें। कहने सुनने में कोई खता हो, गलती हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।